Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the 11th lecture of course title Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. लास्ट लेक्चर में हमने फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म किया था। आज उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। Relativistic mechanics is the mechanics in which the velocities of the moving objects are comparable to the speed of light. Roughly speaking, वो mechanics जिसमें हम velocity of objects को comparable to the velocities of speed of light लेते हैं, such mechanics is called a relativistic mechanics. स्पेशल रिलेटिविटी का जो पास्टुलेट था उसमें हमने यही कहा था कि ऑल इनर्शियल फ्रेम जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। दैट मीन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल लॉ मस्ट हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इक्विवेलेंटली वी कैन से द इक्वेशंस मस्ट बी कोवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट में हमें इसको प्रूफ करना है कि आपके जितने भी लॉज हैं वो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने प्रूफ किया था कि वो कोवेरिएंट रहते हैं। वेदर दे आर कोवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए वी नीड टू फाइंड अ कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। हम जानते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने तीन कंपोनेंट्स के साथ डिस्कस किया है, लेकिन जब से हमने फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म को डिस्कस करना शुरू किया हमने एक चौथा कंपोनेंट टाइम कंपोनेंट भी इंट्रोड्यूस करा दिया। सो रफली स्पीकिंग वी से इफ वी कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म वी कैन से सच एक्सप्रेशन सच क्वांटिटी आर कॉल्ड कोवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। So for that we need to extend a three vector law to a four vector form which we can say as a covariant form. यहाँ पे भी जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि Fi is equal to d by dt into m dxi over dt. This is a second law of motion. We can say F is equal to ma. But it has three components. F1, F2 and F3 mean F1 along x-axis, F2 along y-axis and F3 along z-axis. So if we want to convert into a covariant form, what we have to do, we need to introduce the fourth component of force and momentum. Also, four vectors and scalars are combined to form a covariant equations. अब हम यहाँ पे प्रॉपर टाइम को डिफाइन करते हैं और इसको डिफाइन करने के लिए हम मीट्रिक टेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी प्रूव किया था दैट मीट्रिक टेंसर और अ मिन्कॉस्की स्पेस टाइम रिमेन्स इनवेरिएंट और कोवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में हमने उसको फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म में भी रिप्रेजेंट किया और देन उसको हमने शो किया था कि इट रिमेन्स कोवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ वी हैव टू इवेंट्स like txyz and other t plus dt, x plus dx, y plus dy and z plus dz, then we can define the interval between these 2 points by this equation. ds square is equal to c square dt square minus dx square minus dy square minus dz square. So we know this is a invariant quantity, and we say this quantity for a frame moving with the event can be written as ds square is equal to c square d tau square. We replace t by d tau and say there is no change in the space coordinate, and if we say there is no change in space coordinates,
that mean these differential will be equal to 0 because this represents the change along x-axis, along y-axis, along z-axis. अगर आप ये इवेंट से देखें तो there is infinitely small distance that is t plus dt, x plus dx, y plus dy and z plus dz. और यहाँ पे जो हम कंडीशन ले रहे हैं कि that a frame moving with the event so that there will be no change along x-axis, y-axis and z-axis. So accordingly, the differentials along x-axis, y-axis and z-axis are constant so that their differential are 0. We can say d tau is the time interval observed in frame moving with the event. So if we use these values of ds square is equal to c square d tau square in the left hand side of the above equation, that is this equation, and use dx square dy square dz square as a space component into a single form, that is in terms of vector form, so that we have dx bar square. पिछले लेक्चर में भी हमने बार को कहा था कि इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट होता है और z कंपोनेंट होता है. सो dx बार स्क्वायर मीन dx स्क्वायर, dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. So if we divide c square the whole equation, we have d tau square is equal to dt square. और अगर हम dt square कॉमन ले लें from the right hand side, then we have 1 minus 1 over c square dx over d tau whole square. This is basically rate of change of displacement which is equal to velocity, and we call it as v square. और अगर हम both sides पे square root ले लें, then we have d tau is equal to dt into 1 minus v square over c square. Remember 1 minus v square over c square square root is the बीटा जो हमने बहुत शुरू में डिफाइन किया था जब हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव किया था. तो वहां पे हमने बीटा की वैल्यू रखी थी 1 over 1 minus v square over c square. Therefore here the value of 1 minus v square over c square square root is equal to beta inverse. So we can say d tau is the proper time interval and is the interval measured by the clock moving with the event. So यहाँ से एक important relation हमें मिल जाता है जो कि dt over d tau की फॉर्म में हम ले सकते हैं. So dt over d tau mean is equal to 1 over beta inverse, which is equal to dt over d tau is equal to beta. Next हम for velocity जब डिफाइन करेंगे तो फिर हम वहां पे इस रिजल्ट्स को यूज करेंगे. So अब हम for velocity डिफाइन करते हैं और डेफिनेशन वही है जो हम यूजली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लेते हैं, that is rate of change of displacement is called velocity. बट एक डिफरेंस यहाँ पे ये रहेगा कि हम जो रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर टाइम जो अभी हमने डिफाइन किया है. सो वी कैन से फॉर वेलोसिटी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V. म्यू इज द इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर कंपोनेंट्स को, दैट इज 0 1 2 3 एंड इट इज डिफाइंड बाय एज द प्रॉपर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फॉर वेक्टर x म्यू. x म्यू को हमने लास्ट लेक्चर्स में डिफाइन किया है दैट दिस इज इक्वल टू ct x बार, वेयर ct इसका 0th कंपोनेंट था और x बार जो थे इसके वो आपके स्पेस कंपोनेंट थे विच इंक्लूड्स x1 x2 एंड x3 और वी कैन से x y and z. So for velocity here is defined by dx mu over rate of change of proper time. This is tau. अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स जो आपके ऑर्डिनरी मीन जो आपके न्यूटोनियन कंपोनेंट्स हैं या स्पेस कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकें. सो वी नीड टू रिप्लेस दिस डी tau बाय
डी टी, जो ऑर्डिनरी टाइम जो हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट विल बी वेलोसिटी। सो हम चाहेंगे कि यहाँ पे टॉ को हम रिप्लेस कर सकें विद टी। सो वी कैन यूज अ चेन रूल, डी टी इंटू डी टी ओवर डी टॉ। अब यहाँ पे वो रिलेशन हम यूज करेंगे जो हमने अभी प्रॉपर टाइम के लिए डिफाइन किया था, दैट इज डी टी ओवर डी टॉ is beta. So we use the value of dt of tau as beta and we have dx mu over dt. So यहाँ पे अब हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स मीन हम इसका जीरोथ कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इसका फर्स्ट कंपोनेंट वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट। जीरोथ ऑलवेज क्रॉसपोंड टू टाइम कंपोनेंट, और बाकी जो तीन कंपोनेंट है 1 2 3 obviously correspond to space components. So अब हम इनकी वेरिएशन देते हैं, लाइक ये देखें यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट निकालना चाहते हैं दैट इज टाइम कंपोनेंट, तो हम म्यू की वेरिएशन ले लेते हैं। म्यू की वेरिएशन हमारे पास 0 1 2 and 3 है। So if we take mu as 0, then we have the zeroth component, right hand side पे भी x is equal to x 0 आएगा, और ये वो 4 वेक्टर है जो हमने डिफाइन किया था। और x0 मीन जीरोथ कंपोनेंट और टाइम कंपोनेंट, और वो हमारे पास था ct। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें ct की, तो देन वी हैव बीटा dct ओवर dt। So c is a constant. C is a constant which can be taken outside this differential. So we have dt over dt, which will cancel out. We have beta c. So our zeroth component of velocity is beta c. Similarly, we can obtain the first, second, and third component of velocities. Similarly, अगर हमें फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, वी रिप्लेस म्यू बाय 1, so that we have v1 is equal to dx1 over dt, and we know dx1 is dx, that is x component. So we have beta dx over dt, and dx over dt is the velocity along x-axis. So we have beta vx. So similarly, we can find the second component as well as third component of velocity, and one can see that there is a change in the velocity component. यूजुअल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमारे पास जो वेलोसिटी आती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो vx, vy और vz है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर जो आ रहा है वो बीटा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज आ गए, और इनको हम अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैन राइट एज बीटा सी bvx bvy into bvz, so that if we take beta common and component form we have c comma v bar. V bar mean again it has 3 components of velocity, velocity along x-axis, y-axis and z-axis. So like जैसे हमने वहाँ पे 4 वेक्टर का प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था, और उसके लिए हमने कंटा वेरिएंट और को वेरिएंट को आपस में मल्टीप्लाई किया था इन ऑर्डर टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ 4 वेक्टर। तो यहाँ पे भी हम चाहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आएगी, उसके लिए हम 4 वेक्टर ऑफ वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ कंटा वेरिएंट और को वेरिएंट आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सिमिलर टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। सो वी गेट बीटा स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर माइनस वी बार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कंटा वेरिएंट की फॉर्म तो है बट को वेरिएंट की फॉर्म नहीं है, लेकिन हम ये लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रूव किया था कि हम कैसे एक कंटा वेरिएंट से को वेरिएंट फॉर्म बना सकते हैं, और इवन को वेरिएंट से कंटा वेरिएंट फॉर्म भी बना सकते हैं। सो लेट्स सी, चेक करते हैं कि ये कंटा वेरिएंट से हम को वेरिएंट कैसे बनाते हैं। और ऑब्वियसली जो को वेरिएंट फॉर्म आएगी इसकी, उसमें स्पेस कंपोनेंट जो वहाँ पे हमने प्रूव किया था वो नेगेटिव कंपोनेंट्स आ जाते हैं,
फोर वेक्टर्स में, तो यहाँ पे भी उसी वजह से, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो डिफाइंड है विद रिस्पेक्ट टू फोर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो देयरफॉर इसके जो स्पेस कंपोनेंट वेलोसिटी के उसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा जब हम फोर वेलोसिटी को कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। सो ये देखिए, ये अभी हमने डिफाइन किया था v म्यू इज इक्वल टू बीटा इंटू सी कॉमा वी बार। ये हमारी कंट्रावेरिएंट फॉर्म थी और अब हम चाह रहे हैं कि इससे हम कोवेरिएंट फॉर्म निकालें। उसके लिए हमने मीट्रिक टेंसर का इस्तेमाल किया था जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 और 0 0 0 -1 थी। दैट मीन डायगोनल में इसके एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे इसके अपर डायगोनल लोअर डायगोनल में एलिमेंट्स जो है वो जीरो सारे से। एक और चीज़ हमने वहाँ पे ये देखा था कि ये पहला कंपोनेंट जो कि स्पेस कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे इसके सिग्नेचर्स मैटर करते हैं। अगर टाइम कंपोनेंट पॉजिटिव होगा तो बाकी स्पेस कंपोनेंट जो आपके नेगेटिव होंगे, या अगर आपका टाइम कंपोनेंट नेगेटिव होगा तो स्पेस कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होंगे। सो यहाँ पे चूंकि टाइम कंपोनेंट आपका पॉजिटिव है तो स्पेस कंपोनेंट आपके के सारे नेगेटिव हैं। और ये हमने लास्ट टाइम एक रिलेशन किया था जिससे आप कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। कंट्रावेरिएंट मीन अपर इंडिसेस है और कोवेरिएंट मीन लोअर इंडिसेस में वो आ जाता है। तो यहाँ पे देखें म्यू म्यू जो है वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा और न्यू जो है वो सिंपल रह जाएगा इसके सबस्क्रिप्ट में। और ये इसको हमने वहाँ पे जीटा डिफाइन किया था और मैंने ये भी कहा था कि इसकी वैल्यूज जो है वो अगर एक एक्सप्रेशन में किसी एक की हमें अगर वैल्यूज वेरिएशन का पता है तो दैट इज अंडरस्टूड कि बाकी उसके अंदर जो इन्वॉल्व होंगी वैल्यूज इट हैज द सेम वेरिएशंस। दैट इफ वी से म्यू हैज वेरिएशन 0 1 2 3 देन न्यू विल आल्सो हैज 0 1 2 एंड 3 वेरिएशन। सो अब हम यहाँ पे देखिए इसका जो जीरोथ कंपोनेंट है वो तो हमारे पास है बीटा सी। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या कोवेरिएंट फॉर्म में भी इसका कंपोनेंट यही रहता है, तो उसके लिए हमें म्यू को 0 पुट करना है। सो वंस अगर हम म्यू को 0 पुट करते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में इसकी वैल्यूज जो हैं वो इसकी है, बाकी सारी इसकी वैल्यूज जो हैं वो 0 हैं। दैट मीन zeta 0 0 zeta 1 1 zeta 2 2 and zeta 3 3 has values। बाकी zeta 0 1 0 2 0 3 और इस तरीके से zeta 1 0 zeta 1 2 and zeta 1 3 ये सारी की सारी इसकी 0। सो अगर हमने म्यू को 0 रखा है तो न्यू मस्ट बी 0 इसको नॉन नेगेटिव लेने के लिए। अगर आप न्यू को 1 2 3 करेंगे तो ऑब्वियसली इस मीट्रिक को देखते हुए इसके वो रिजल्ट सारे के सारे 0 होंगे। सो हमने यहाँ पे न्यू को भी 0 ही ले लिया। तो जब आप म्यू को 0 फिक्स कर चुके हैं तो यहाँ पे भी 0 आएगा और इसकी वैल्यू थी आपके पास 1 और ये कैपिटल V 0 का मतलब है बीटा सी। इसका मतलब ये होगा कि पहला कंपोनेंट आपके पास बीटा सी ही आ गया। सो पहले कंपोनेंट में टाइम कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया, जो कंट्रावेरिएंट फॉर्म में था वही कोवेरिएंट फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने ये गेट कर लिया बिकॉज दिस इज इक्वल टू V0, ये आपका कोवेरिएंट फॉर्म में आ गया। ये पहला कंपोनेंट टाइम कंपोनेंट निकाले, सो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसका दूसरा कंपोनेंट हम निकालें, दैट इज स्पेस कंपोनेंट निकालें। तो उसके लिए हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे म्यू को 1। सो अगेन जीटा जब आप 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ओनली जो चॉइस आएगी न्यू के लिए वो 1 ही आएगी बिकॉज ऑल अदर वैल्यूज ऑफ न्यू इट विल बी 0। सो अगेन यहाँ पे आपके पास 1 ही आएगा बिकॉज हमने म्यू को 1 फिक्स कर दिया हुआ है। सो देयरफॉर यहाँ पे अब जीटा 1 1 की वैल्यू है आपके पास -1। अगर आप -1 यहाँ पे पुट करते हैं और इस तरीके से V1 की वैल्यू वही है V बार के अंदर 3 वैल्यू छुपी हुई है, यानी आपके पास
V1 है और ये आपको मिल रहा है V1 यानी कोवेरिएंट फॉर्म में, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस V1। वी कैन से कि कोवेरिएंट फॉर्म में इसकी वैल्यू जो है वो, ये अगर आप यहां से ये निकालना चाहते हैं, कंट्रावेरिएंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोवेरिएंट। और यहां से अगर आप देखें तो ये आपका स्पेस कंपोनेंट की वेलोसिटी पहली जो आएगी वो माइनस में आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप म्यू को 2 रखेंगे तो आपके पास v2 वो भी माइनस v2 आएगा। और इनकी वैल्यूज जो हमें मालूम है वो हमने कंट्रावेरिएंट आरआरडी जो है वो निकाली हुई है, तो उससे हम कोवेरिएंट निकाल रहे हैं। इसी तरीके से v3 जो आएगा वो भी आपके पास माइनस v3 आ जाएगा। सो वी कैन से स्पेस कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि टाइम कंपोनेंट जो है वो सेम रह रहा है, लाइक जैसे हमने 4 वेक्टर में किया था। देयरफॉर अगर हम वो वाली वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की वो यहाँ इंसर्ट करें तो इनके आप अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, वी हैव बीटा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी बार स्क्वायर, एंड अगेन अगर आप सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो देन वी हैव 1 माइनस वी बार स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जो कि अभी हमने डिफाइन किया था, दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और वी नो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है, दैट इज कांस्टेंट। सो वी कैन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट होती है दैट इज अंडरस्टूड कि वो इनवेरिएंट होती है। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में आप उसको देखेंगे तो वो आपको इनवेरिएंट ही रहेगी। सो देयरफॉर वी से v स्क्वायर जो है और मैग्नीट्यूड ऑफ a product of 4 velocity is constant which is invariant. नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं फॉर फोर्स सिमिलर टू फॉर वेलोसिटी। फॉर फोर्स के लिए वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स यू द फोर्स, और ये न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगेन पी बार मीन इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है ये वेक्टर फॉर्म में। अगर हम देखें तो इसके अंदर F1, F2 और F3 3 कंपोनेंट्स हैं, और सिमिलर टू इफ वी से F1 दैट विल बी इक्वल टू dP1 ओवर dt, और फोर्स अलोंग x एक्सिस, फोर्स अलोंग y एक्सिस एंड फोर्स अलोंग z एक्सिस। राइट हैंड साइड पे भी वैसे ही आपकी वेरिएशन आती जाएंगी। इसको भी हमने जनरलाइज करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग द फोर्थ कंपोनेंट, और ऑब्वियसली फोर्थ कंपोनेंट जब हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो टाइम कंपोनेंट है, सो दैट इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइन हम इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने फॉर वेलोसिटी को किया है, सिर्फ चेंज न्यूटोनियन मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में चेंज ये आ रहा है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर टाइम है। सो देयरफॉर वी डिफाइन हियर एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर मोमेंटम। ये तो वैसे ही है जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल मोमेंटम नहीं है, जैसे फोर मोमेंटम, क्योंकि आप प्रॉपर टाइम से जब इसको रेट ऑफ चेंज लेंगे तो जो हम लेंगे वो भी फोर मोमेंटम लेंगे, जैसे हमने फोर वेक्टर लिया था in order to define for velocity. So rate of change of four momentum with respect to proper time will give you four force. नेक्स्ट टारगेट भी यही है कि हम यहाँ से इसको हम जो ऑर्डिनरी न्यूटोनियन कंपोनेंट है वो सेपरेट कर सकें, या उसको हम रिलेट कर सकें, जो सो दैट टाइम कंपोनेंट अलग हो जाए और आपके स्पेस कंपोनेंट जो अलग दिखें। तो हम वो इफेक्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर हमने ऑर्डिनरी से इसको रिलेट करना है तो टॉ को प्रॉपर टाइम को हम इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे, सो दैट वी हैव डी पी म्यू ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी टॉ। और अगेन हम वो वाला प्रॉपर टाइम वाला रिजल्ट अगर यूज़ करते हैं दैट इज इक्वल टू बीटा, देन वी हैव अ रिलेशन ऑफ फोर फोर्स इज गिवन बाय एफ म्यू इज इक्वल टू बीटा इंटू डी पी म्यू ओवर डी टी।
नेक्स्ट हम इससे भी इसके 4 कंपोनेंट्स को अलग अलग लिखना चाहेंगे, और म्यू को हम बारी बारी वेरी करेंगे। म्यू को 0 करेंगे, म्यू को 1 करेंगे, म्यू को 2 और म्यू को 3, so that we can get the 0th component and 1, 2 and 3rd component of 4 4s. So अगर हम इसका 0th component लें, तो then we have beta into dp 0 over dt, since p is the linear momentum. So यहाँ पे अगर हम p नॉट को या p 0 को हम mc रखते हैं, तो बाकी अगर इसके यूजली ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स हैं p1 p2 p3, वो आपके न्यूटोनियन कंपोनेंट्स हैं। तो हमने टाइम कंपोनेंट को यहाँ पे सेपरेट कर लिया, और टाइम कंपोनेंट के लिए हमने उसको 0th को p0 को हमने mc कह दिया। लेटर ऑन हम इसको प्रूव करेंगे कि p0 mc की इक्वल कैसे आता है। और बाकी जो उसके 3 कंपोनेंट हैं उसको हमने p बार कह दिया, दैट मीन इसके अंदर p1 p2 और p3 है। So that this equation may be written into this form। और अगर हम ये बीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, we have c चूंकि velocity of light है और ये constant है, so it may be taken outside the differential। So we have c beta into dm over dt। Remember m यहाँ पे relativistic mass है, आपकी रेस्ट mass नहीं है, लेकिन हम रिलेशन हमारे पास है जिससे हम रेस्ट मैस को रिलेटिविस्टिक मैस के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो इसको हमने डी पी बार ओवर डी टी को आम जो यूजुअल हमने डिफाइन किया था स्टार्ट में एफ बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने स्टार्ट में लिया था, दैट इज एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार ओवर डी टी, सो दैट एफ म्यू इज इक्वल टू c beta dm of dt comma bf bar। फर्दर हम इसको और लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे वेरिएशन दें, अगर हम पहला 0th कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो f 0th मीन c beta dm over dt, और यहाँ पे हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे m इज इक्वल टू बीटा एम नॉट। तो ये अगर आप इसका फर्स्ट कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे आपके पास बीटा इंटू डी पी 1 ओवर डी टी आता है, जो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्पेस यू कैन से 0th कंपोनेंट, तो हमने इसका टाइम कंपोनेंट निकाल लिया। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोर्स का जो आएगा for along x-axis, that is f1 is equal to beta f1, और f1 mean dp1 over dt। और p1 को अगर हम यूज करें एज ए, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, उसको हम along x-axis ले रहे हैं तो mv1 हो जाएगा, so that it can be written as beta into dmvx over dt। अगेन m जो है यहाँ पे वो रिलेटिविस्टिक मैस है, उसको अगर हम रिलेशन देखें तो रेस्ट मैस के साथ इसका रिलेशन है बीटा एम नॉट का, और एम नॉट कॉन्स्टेंट होता है। अगर हम ये इसके अंदर इंसर्ट करें तो एम नॉट जो है वो आउटसाइड द डिफरेंशियल लिखा जा सकता है। बीटा के अंदर जो है बेसिकली वेलोसिटी है जो डिपेंड करती है टाइम पे, देयरफॉर हमने इसको इनसाइड द डिफरेंशियल रखा है, सो दैट वी हैव एम नॉट बीटा इंटू डी बी बी एक्स ओवर डी टी। सिमिलरली हम अदर 2 कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं along y axis and along z axis। So we have 4 components of 4 force। This is 0th component, this is first component, the second component, and this is the third component of the force।